Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, J.K. Gowani Government College, Bhinmar. Today, we will discuss about the structure of kidney and how the urine is produced by the kidney. विद्यार्थियों, उत्सर्जी तंत्र के इस द्वितीय व्याख्यान में आज हम बात करेंगे वृक्क की सामान्य संरचना और किस तरह से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है. This is the basic anatomy of the urinary system. The main structure include kidneys, ureters, bladder and urethra. जो मूत्र तंत्र है, जो यूरिनरी सिस्टम है, जो उत्सर्जी तंत्र है, उसमें गुर्दे एक जोड़ी दाएं व बाएं जिनके ऊपर टोपी के समान अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है. रीनल धमनी और रीनल शिरा उनके अंदर प्रवेश करती है. एक से रुधिर अंदर जाता है, दूसरे से रुधिर बाहर आता है. मूत्र बनने के पश्चात यूरेटर द्वारा वो मूत्र यूरिनरी ब्लैडर के अंदर संग्रहित किया जाता है और फिर यूरेथ्रा द्वारा समय समय पर शरीर से निष्कासित किया जाता है. The renal cortex, the outermost region, the renal medulla, the inner region, the renal pelvis through which enters the renal and artery and the veins and nephrons. If you look at the structure, you can see the renal pelvis to show the urine form path of the urine. The nephrons are present in both the region, the cortical region as well as the medullary region. The pelvis is clearly shown and the outermost renal cortex. The ureter is also cut away to show the path of the urine through which the urine goes to the urinary bladder. किस तरह से गुर्दे के अंदर रीनल धमनी और रीनल शिरा मतलब वृक्क धमनी और वृक्क शिरा से अलग अलग रुधिर वाहिकाएं बनती हैं और वो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो रुधिर है, रुधिर प्रवेश करता है और रुधिर वापस बाहर भी जाता है. This is the in detail the plan structure of the kidney. You can see how from the aorta the renal vein, renal artery are forming, and from renal vein it is going to the inferior vena cava. Other parts we have already discussed about the renal cortex, the renal medulla, then the renal column of Bertini, the renal pyramids. Fat is present in the renal sinus so as to prevent the kidney from the mechanical jerks. The minor and the major calyx are also there. The renal pelvis and the renal capsule. जो गुर्दे की संरचना है वो लगभग राजमा या किसी किडनी बीन के समान होती है. जो अंदर वाला कॉन्केव भाग है, जो अवतल भाग है, वहां से वृक्क धमनी और वृक्क शिरा प्रवेश करती है और वहीं से जो यूरेटर है मूत्र लेके गुर्दे से बाहर जाता है. Now the structure of a uriniferous tubule or a nephron. It has a glomerulus. Glomerulus is basically a cluster of several capillaries which are formed from the arterioles entering a Bowman capsule. The Bowman capsule is a
cup-like structure with a concave and a convex surface. In the concave surface, the arteriole, that is the afferent arteriole, which is the branch of the renal artery, enters. Then there is the efferent arteriole, which carries the blood away from the Bowman's capsule. From the Bowman's capsule, there is formation of a convoluted tubule, first the proximal and then the distal convoluted tubule, and between these two a hairpin loop is present, which is known as loop of Henle. Greater the length of loop of Henle, more will be the absorption of filtrate. Then there is a collecting duct which empties the formed urine into the renal pelvis region. जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एक बोमन कैप्सूल होता है, एक कप के समान संरचना होती है, और जो उसका कप वाला भाग है वहां पर जो अभिवाही आर्टियोल है, धमनिका है, उससे बहुत सारी कैपिलरीज निकलती हैं और एक वो गुच्छिका का निर्माण करती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. जो बोमन संपुट है, बोमन संपुट का जो कॉन्वेक्स रीजन है, जो फूला हुआ भाग है, उससे एक कुंडलित नलिका निकलती है जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, सीलिया बहुत अधिक, पक्षमा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और बिल्कुल टर्किश टॉवल के समान इसकी संरचना होती है जिससे अवशोषण की सतह बढ़ती है. उसके बाद एक हेयर पिन टर्न होता है जो लूप ऑफ हेनले बनाता है, और उसके पश्चात दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, और बाद में एक संग्रहित नलिका पाई जाती है. तो इस तरह से एक संरचना होती है नेफ्रॉन या यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल को. और इसका जो लूप ऑफ हेनले है उसके चारों तरफ एक और लूप बनता है जिसको हम लूप ऑफ वासर एक्टी बोलते हैं, जहां पर ये सारी जो केशिकाएं हैं वो जो अनावश्यक पदार्थ हैं उसको ट्यूबुलर सीक्रेशन द्वारा जो फिल्ट्रेट है उसमें डालती हैं, और जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका पुनः अवशोषण किया जाता है. So the first process is the filtration, where water, nutrients and waste are filtered from the glomerular capillaries into the Bowman's capsule of the nephron. This is the only place in the system where the blood is actually filtered. The blood pressure is used to push plasma through capillary walls and into the Bowman's capsule. ये एकमात्र जगह है जहां पर पहला कार्य संपादित होता है, जहां पर जिस स्यंदन की प्रक्रिया या जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो होता है. इन द प्रॉक्सिमल convoluted tubule, the nutrients like salts, vitamins are moved out of the tubule through active transport, while water follows the nutrients by osmosis. जो क्षनित द्रव्य है उसके अंदर से आवश्यक एसेंशियल सॉल्ट हैं, विटामिन्स हैं, वो सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित या पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं. And there is obligatory water reabsorption, मतलब अविकल्पी जल का पुनः अवशोषण इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर ऑस्मोसिस द्वारा किया जाता है. The loop of Henle, the tissue around the loop of Henle is salty from active transport and diffusion of sodium salt. जो लूप ऑफ हेनले है, जो हेनले का पॉश है, इसके चारों तरफ का जो द्रव्य है
वो क्या होता है, ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे जैसे जो क्षनित द्रव है वो लूप ऑफ हैंडले के टिप पर जाता है, उसमें से जल का अवशोषण होना चालू हो जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा, और सोडियम और क्लोराइड का भी अवशोषण होना प्रारंभ हो जाता है डिफ्यूजन के द्वारा। साथ ही यूरिया का इसमें प्रवेश कराया जाता है और सोडियम क्लोराइड का सक्रिय परिवहन भी किया जाता है। द सॉल्टी कंडीशन अलाउज वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ द loop. Then there is a tubular secretion which takes place in the distal convoluted tubule. The active transport is used to move more nutrients out of the concentrated urine, and some ions, drugs and toxins are actively pumped into the tubule. जो सक्रिय परिवहन है उसके द्वारा और आवश्यक पदार्थ इस यूरिन या क्षनित से बाहर निकाले जाते हैं, मतलब पुनः अवशोषित किए जाते हैं, और कुछ आयंस, ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रीशन द्वारा इसके अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। Then the collecting duct, the more water leaves the tube by osmosis since the tube is surrounded by a salty tissue. कहने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है वो अधिक सॉल्टी होता है, तो अंदर जल की मात्रा अधिक होती है और बाहर जल की मात्रा कम होती है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो संग्रहित नलिका है उसके अंदर जो मूत्र है उसके अंदर जल की मात्रा बाहर जो उत्तक के अंदर जो तरल है उससे अधिक होती है। तो जल के अंदर चूंकि जो जल है, इस मूत्र के अंदर जल की मात्रा अधिक होने के कारण ऑस्मोसिस होता है संग्रहित नलिका से टिश्यू की तरफ। सम यूरिया लीव्स बाय डिफ्यूजन एंड मे बी साइकल्ड थ्रू द सिस्टम। This is the summary of the whole process which is taking place during the urine formation. First, the filtration. Second, the tubular reabsorption. Third, the tubular secretion. तो जो मूत्र बनने की प्रक्रिया है उसको अगर हम समराइज करें तो पहले जो स्टेप्स है जिसको हम अंतरा निस्यंदन कह रहे हैं या सूक्ष्म निस्यंदन कह रहे हैं, उस दौरान जो ग्लोमेरुलस है जो बोमन संपुट के अंदर उपस्थित है, वहां पर वास्तव में क्या होता है कि जो एफरेंट आर्टियोल है उसका जो कैलिबर है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो अधिक होता है और वो एक केशिका गुच्छ बना रहा है ग्लोमेरुलस, और जब वापस वहां से रुधिर बाहर निकलता है अपवाही वाहिका द्वारा, मतलब इफरेंट आर्टियोल के द्वारा, तो उसका कैलिबर कम होता है, मतलब उसका डायमीटर उसके अपेक्षाकृत कम होता है। तो अधिक मात्रा में जो रुधिर है वो केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है और कम मात्रा में रुधिर बाहर जाता है, तो जिसकी वजह से एक दाब उत्पन्न होता है। ये दाब क्या करता है, क्योंकि केशिकाएं कैपिलरीज की वॉल केवल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, उसी तरह से बोमन संपुट की अंदर की वॉल भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जिससे छनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पर क्योंकि जो छनने की प्रक्रिया है वो मॉलिक्यूलर वेट पर, आणविक भार पर निर्भर करती है, तो आवश्यक पदार्थ भी उसमें छन जाते हैं और इस क्षनित द्रव से इन आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिका में, और यह प्रक्रिया जारी रहती है हैंडले के पॉश में और दूरस्थ कुंडलित नलिका तक भी। जो प्रॉक्सिमल या समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसके अंदर जो जल का अवशोषण होता है उसको अविकल्पी जल का पुनः अवशोषण कहते हैं, जबकि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है और जो संग्रहित नलिका है उसके अंदर जो जल का पुनः अवशोषण होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह से जो सॉल्ट का पुनः अवशोषण है वो एल्डोस्टेरॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। So this is all about. Thank you.